Hello everyone, I am Hemlata from Sanatan Dharm College, Ambala, Kant. Here I am to discuss about the topic. The topic is monetary policy. In monetary policy, we'll discuss about its meaning, its objectives, instruments, limitations, some suggestions for improvement in monetary policy, and highlights about new monetary policy of RBI. First, let's discuss about its meaning. कि आखिर monetary policy होता क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी उन वेरियस स्टेप्स में से एक स्टेप है जो गवर्नमेंट लेती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए. बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एंड इट आल्सो इन्फ्लुएंस द क्रेडिट पॉलिसी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्रेडिट पॉलिसी मतलब जो हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स हैं जो पब्लिक को लोन देते हैं वो कितना लोन देंगे या फिर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे. ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज़ टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज़ टू रेगुलेट मनी सप्लाई. Money supply includes both money in circulation and credit creation by banks. Monetary policy is framed to regulate the money supply in the economy by credit expansion or credit contraction. By credit expansion means ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, और बाय क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स गिविंग लेस लोन, कम से कम लोन देना जिससे पैसा कम होगा मार्केट में. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट वन इज़ टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना मीन्स टू इट बेसिकली इम्प्लाइज कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. प्राइस लेवल इज़ अफेक्टेड बाय मनी सप्लाई. मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स मनी सप्लाई टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज़ टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है. लाइक बाय ऑफरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मॉनेटरी पॉलिसी encourages the public to save and invest. Next is to manage aggregate demand. Monetary authority tries to keep the aggregate demand in balance with aggregate supply of goods and services. Like if aggregate demand is to be increased, then credit is expanded and interest rate is lowered down. Because of low interest, उस लो इंटरेस्ट रेट की वजह से more people will take loan to buy goods and services and hence aggregate demand increases and vice versa. Next is to promote employment. This is the good one कि employment increase, employment को promote करने के लिए भी monetary policy का objective ये भी है एक, to promote employment. To develop infrastructure means monetary policy aims to developing infrastructure also. It provides concessional funds for developing infrastructure. To promote economic growth, this is the basic one. To promote economic growth मतलब monetary policy makes available necessary supply of money and credit for the economic growth to the country. Next one is instruments of monetary policy. There are two types of instruments. First one is quantitative and qualitative is the second one. In quantitative, first one is bank rate. बैंक के रेट RBI डिसाइड करती है. मीन्स अगर RBI ने एक रेट फिक्स कर दिया कि आप पब्लिक से इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन पे, तो बैंक्स को एज इट इज़ करना पड़ता है, उतना ही इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है. सो बैंक रेट बेसिकली इज़ द रेट विच इज़ डिसाइडेड बाय द RBI टू टेक फ्रॉम द पब्लिक फॉर देयर लोन. Next one is SLR, which is
Statutory liquidity ratio. Statutory means compulsory and liquidity means cash, जिसका मतलब है बैंक को कुछ अमाउंट अपने पास रखना होता है. जो रेट आरबीआई ने डिसाइड कर लिया उतने परसेंटेज बैंक को टोटल अमाउंट में से डिडक्ट करके अपने पास रखना पड़ता है, और जो रिमेनिंग होगा वो अमाउंट एज अ लोन मार्केट में प्रोवाइड कर सकती है बैंक. नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. Open market operation, it means that the bank controls the flow of credit through the sale and purchase of securities in the open market. When securities are purchased by central bank, then RBI makes payment to commercial banks and public. Next one is CRR. CRR means cash reserve ratio. कैश रिज़र्व रेशियो क्या होता है? बैंक जो है कुछ अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाती है. जैसे अगर आरबीआई ने सीआरआर इंक्रीज़ कर दिया तो बैंक को ज़्यादा कैश होल्डिंग्स मेंटेन करनी पड़ेंगी आरबीआई के साथ, जिससे उनकी लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. ऐसा तब किया जाता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे होते हैं, तो आरबीआई अपने पास वो पर्टिकुलर अमाउंट रखवा लेती है. Next one is repurchase auction rate, which is also called repo rate. Repo rate means जब बैंक के पास पैसा नहीं होता लोन देने के लिए या फिर एक्सपेंसेस के लिए, तो बैंक आरबीआई से लोन लेती है. तो आरबीआई के शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगी बैंक को. जिस रेट पे आरबीआई वो लोन प्रोवाइड करेगी उस रेट को कहते हैं रेपो रेट. Next one is reverse repo rate, which is reverse repurchase auction rate. जैसे रिवर्स मतलब ऑपोजिट. जैसे पहले आरबीआई बैंक को लोन दे रही थी एट द टाइम ऑफ नीड, ठीक उसी तरह बैंक भी आरबीआई को लोन देती है जब आरबीआई को ज़रूरत होती है. तो जिस रेट पे अब बैंक लोन देगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. Next one is qualitative credit control. First one is change in margin requirements of loan, जिसमें margin जो होता है इसमें वो है difference between loan value and the market value of the security. It is also fixed by RBI. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है. अगर मार्जिन परसेंट ज़्यादा है तो जो लोन है वो कम मिलेगा उस सिक्योरिटी के वैल्यू से, एंड द वाइस वर्सा. सेकेंड वन इज़ मॉरल परसुएशन. ये एक तरह का एडवाइस है जो सेंट्रल बैंक देती है कमर्शियल बैंक्स को टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द गाइडलाइंस गिवन बाय द आरबीआई, and also to pursue its monetary policy. Next one is credit monitoring. Means under these arrangements RBI monitors and scrutinizes all the sanctions of bank loan exceeding rupees 5 crore to any single party for working capital requirement. It scrutinizes all such loans after these are sanctioned by commercial banks. मतलब मॉनिटर करती है आरबीआई. अगर वो अमाउंट एक पर्टिकुलर पार्टी के पास 5 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है उस चीज़ को मॉनिटर करती है आरबीआई. नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एक्शन. इन केस अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करती तो आरबीआई के पास पूरा राइट होता है टू टेक direct action against that particular bank. Next one is ceiling on loans. Means ceiling on loan for any single project for the banking sector has been fixed at rupees 500 crore. Banks can sanction maximum loan of rupees 500 crore for a single project. Next one is types of monetary policy. There are two types of monetary policy.
first one is the expansionary and the second one is contractionary. Expansionary means मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देना, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी. कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर देना, मतलब कम कर देना. मनी सप्लाई को कम किया जाता है जिससे इन्फ्लेशन से फाइट कर पाए. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स लिमिटेशंस. फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. दिस मीन्स कि मॉनेटरी पॉलिसी का इतना बड़ा कोई हाथ नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में. Like the monetary policy of reverse bank has played only a limited role in controlling the inflationary pressure. Prices are affected by many factors and money supply is only one of them. Other factors are beyond the control of monetary policy. Second one is poor banking habits. Yeah, this is like poor banking habits of Indian masses hinder the functioning of monetary policy. बैंक क्रिएट्स क्रेडिट आउट ऑफ डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक. जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया उसमें से क्रेडिट प्रोवाइड करती है बैंक. नेक्स्ट वन इज़ अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट. मनी मार्केट इज़ द मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, RBI सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा आर परचेज्ड एंड सोल्ड. एंड द वीक मनी मार्केट लिमिट्स द एफिशिएंट working of the monetary policy. The money market comprises of two parts, the organized and the unorganized one. जो monetary policy है वो unorganized के लिए सिर्फ work करती है, but it fails to achieve the desired results in unorganized money market. Next one is existence of black money. या black money क्या होता है? काला धन. मीन्स वो पैसा like the black money is not recorded as the borrowers and lenders keep their transaction secret. अब वो ट्रांजैक्शन से सीक्रेट है तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना पैसा है और कितना नहीं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी, क्योंकि उसका कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है. वो भी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस है. Next one is lack of banking facilities. Yeah, banking facilities are not available in some rural and remote areas. Country में ऐसी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ या तो बैंक्स हैं ही नहीं या फिर वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है. Next one, here are some suggestions related to the improvement of monetary policy. First one is price stability. Means price stability should be the main objective of the monetary policy. मतलब main objective होना चाहिए monetary policy का कि वो price stability लेके आ सके market के अंदर. Next one is coordination between monetary and fiscal policy. या monetary policy और fiscal policy को मिल के काम करना चाहिए. मतलब उन्हें एक डिज़ायर गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी मिल के कोऑर्डिनेशन बना के. नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स कमर्शियल बैंक्स को फ्लेक्सिबल रेट ऑफ रेट मतलब फ्रीडम होनी चाहिए रेट डिसाइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ, मतलब जब ज़रूरत पड़े वो इंटरेस्ट रेट को कम कर पाएँ या फिर बढ़ा पाएँ एज पर नीड्स. नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेंथनिंग मनी मार्केट. मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करना, मतलब अगर हम मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करेंगे तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी, इससे भी मॉनेटरी पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट हो सकती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. जो पॉलिसीज़ बनाई गई है उनका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स विच डू नॉट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ RBI. So here are some highlights of the new monetary policy of RBI. First one is CRR, cash reserve ratio.
which is now stick to 3%. Bank rate is also unchanged, which is 4.25%. Repo rate and reverse repo rate. Repo rate is 4%, which is also unchanged, and reverse repo rate is 3.35%. MSF, which is marginal standing facility, it is as same as bank rate, which is 4.25%. Statutory liquidity ratio, SLR, is now 18%. Low interest on export credit means export credit पे low interest charge करना. किसान क्रेडिट कार्ड्स, मोर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करना, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है. लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड मनी मार्केट. थैंक यू सो मच.